Hello students, today we are going to study about the third method to solve the pair of linear equation. The method is method of cross multiplication. Now in method of cross multiplication, suppose you are given two equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Now the first thing that you have to do here is you have to shift all terms on left side. That is, suppose the equation is 3x plus 2y is equal to 7, then you have to write this equation as 3x plus 2y minus 7 is equal to 0. So what we did, we shifted all the terms on the left side. So the first step here is shift all the terms on the left side and equate with 0. Then on the second step we have to compare the equations, that is we have two equations. We have to compare each of these equations with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Now suppose this is equation number 1 and the second equation is 2x minus 3y equal to 4. So first we'll write this equation as 2x minus 3y minus 4 is equal to 0, and then what we'll do, we'll compare this with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and compare this with a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, and then we'll write down the values of a1, a2, a3, a1, a2, b1, b2, c1 and c2. We have to get these values. So in the first equation, a1 is equal to the coefficient of x. The coefficient of x here is 3. So the value of a1 is 3. b1, the value of b1 is equal to 2. The value of c1 is equal to minus 7. The value of a2 is equal to 2. The value of b2 is minus 3 and c2 is minus 4. So we got the values of a1, b1, c1, a2, b2, c2, and then what we have to do is we have to write these values in a fixed manner. Like suppose then we have to write x upon, and we have to forget about the coefficients of x, that is a1 and a2. a1 और a2 को हमें इग्नोर करना है. तो अब बचेंगे b1 b2 c1 c2. तो हमें लिखना है b1 b2 और c1 c2. तो x अपॉन b1 b2 c1 c2. इसी तरह y अपॉन जब हम लिखेंगे तब हमें वी हैव टू इग्नोर द कोएफिशिएंट्स ऑफ y, दैट इज हमें b1 b2 को इग्नोर करना है. तो अब अगर हम b1 b2 को इग्नोर कर देंगे तो अब हमारे पास बचे होंगे c1 c2 और a1 a2. तो पहले याद रखना, हमें हमेशा c1 c2 पहले लिखना है. तो c1 c2 a1 a2, यानी हमें हमेशा अपने राइट साइड से चलना है. अब थर्ड विल बी 1 अपॉन, यानी कि कांस्टेंट. इस बार हमें कांस्टेंट वाला टर्म इग्नोर कर देना है. तो अब कांस्टेंट वाला टर्म इग्नोर कर दिया तो हम घूम के फिर से स्टार्ट पे आएंगे. तो दिस विल बी a1 a2 b1 b2. तो a1 a2 एंड b1 b2, एंड देन इसके बाद हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवर राइट. दैट इज वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस b1 विथ c2, यानी c2 b1. तो x अपॉन b1 c2 एंड देन माइनस साइन, एंड देन मल्टीप्लाई b2 बाय c1. तो माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन, हमें a2 मल्टीप्लाई करना है c1 से, यानी हमें अपने राइट साइड से स्टार्ट करना है. तो a2 c1 या c1 a2 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 minus a2 b1, and then we have to equate this x term with constant ones and then y with constant ones. So x upon b1 c2
माइनस B2C1 इज इक्वल टू, क्योंकि तीनों इक्वल हैं तो हम इसे कांस्टेंट से इक्वेट करते हैं, तो 1/A1B2 माइनस A2B1. तो x विल बी इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1. और इसी तरह जब हम y वाले टर्म को कांस्टेंट से इक्वेट करेंगे तो y विल बी इक्वल टू C1A2 माइनस A1C2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1. तो इस तरह हमें x और y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी. अब इस मेथड में अगर हम ये फाइनल फार्मूला मेमोराइज़ कर लेते हैं तो स्टेप्स जो है वो बहुत कम हो जाएंगे, यानी ये पूरे स्टेप x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, बट वी हैव टू जस्ट मेक श्योर कि हम A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यूज़ पहले सब कुछ लेफ्ट साइड शिफ्ट करने के बाद ही वैल्यूज़ निकालें. यानी द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज़ shifting all the terms on the left side, and then we have to compare both the equations with a1x b1y c1, a2x b2y c2, and then we have to write down the values of a1 a2 b1 b2 c1 c2, and then x and y, the value of x and y will be b1 c2 minus b2 c1 upon a1 b2 minus a2 b1, and y c1 a2 minus a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. सो ये वैल्यूज़ जो हैं x की, ये हम डायरेक्टली मेमोराइज़ कर सकते हैं. जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, a1 b2 a2 b1 a1 b2 a2 b1, और a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो हैं ये होते हैं कोएफिशिएंट्स. तो अब खास ध्यान रखना कि आप इनके साथ x और y ना लिखें. तो अब x विल बी इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1, यानी x के साथ होता है a तो हमें a इग्नोर करना है और वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम b. तो b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, एंड y विल बी इक्वल टू, y के साथ जो कोएफिशिएंट होता है जनरल फॉर्म में वो होता है b, तो वी हैव टू इग्नोर b. तो वी विल स्टार्ट विथ c1a2 माइनस a1c2 अपॉन डिनोमिनेटर इज सेम, दैट इज a1b2 माइनस a2b1. Let us take an example. Suppose you are given the equation 5x plus 3y equal to 35 and 2x plus 4y equal to 28. अब पहले हम करेंगे सब कुछ लेफ्ट साइड शिफ्ट. तो दिस विल बी 5x plus 3y minus 35 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 28 is equal to 0. We brought these two equations in general form. अब जनरल फॉर्म में शिफ्ट करने के बाद हमें लिखना है a1 b1 c1 ये तीन वैल्यूज़ और a2 b2 c2. तो a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस 35. सिमिलरली a2 इज इक्वल टू 2, b2 is equal to 4 and c2 is equal to minus 28. We have to compare with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. And we don't have to include x and y with a, b, c. Now x will be equal to b1 c2 minus b2 c1 upon a1 b2 minus a2 b1, and y will be equal to c1 a2 minus a1 c2 upon a1 b2 minus a2 b1. You can easily memorize these two formulas. So after putting the values, this will be x equal to b1. So b1 is equal to 3. So 3 into minus 35 minus b2 into c1. So b2 is 4. 4 into c1. c1 is minus 35. Upon a1. a1 is 5. b2. b2 is 4. Minus a2. a2 is 2 into b1. b1 is 3. Similarly, y will be equal to c1 into a2. So c1 is minus 35 into a2. The value of a2 is 2. Minus a1. a1 is 5 into c2. c2 is minus 28. Upon denominator is same, that is a1 b2 minus a2 b1. So this will be 5 into 4 minus 2 into 3.
So this will be x equal to minus 84 plus 140 upon 5 into 4, that is 20 minus 6. 20 minus 6 is 14. So this will be equal to 4. Similarly, y will be equal to minus 70 plus 140 upon 14. So this will be equal to 5. So we got the value of x as 4 and y as 5. अब अगर इसी मेथड को हम स्टार्टिंग से करते तो हमें x अपॉन इक्वल टू वाई अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन करना पड़ता, तो उससे इजी मेथड है कि अगर हम डायरेक्टली वैल्यूज़ याद कर दे, कुछ भी पैटर्न बना के हम इसे मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे डिनोमिनेटर सेम रहता है और डिनोमिनेटर में c नहीं होता, तो a1b2 माइनस a2b1 दोनों जगह होगा, और न्यूमरेटर में x वाले के लिए हमें x का कोएफिशिएंट यानी कि a वाले छोड़ देने हैं और b1 से स्टार्ट करना है, और y के लिए हमें b का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट यानी कि b हमें इग्नोर करना है, और जो बाकी दोनों बच गए उसमें से c1 से स्टार्ट करना है, तो c1a2 माइनस a1c2। तो इस तरह हम सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेट्स टेक अ लुक एट वन मोर एग्जांपल to understand the concept more clearly. So suppose you are given x minus 3y is equal to 7 and 3x minus 3y minus 15 is equal to 0. So the first thing that we'll do is हम सब कुछ लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे. So the first equation will be x minus 3y minus 7 is equal to 0 and 3x minus 3y minus 15 is equal to 0. अब इसके बाद हम फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के साथ, और दूसरे इक्वेशन को कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के साथ. तो a1 इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में है 1, तो a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस 7. सिमिलरली a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू माइनस 3 and c2 is equal to minus 15. अब we'll write the formula for finding x and y. So x is equal to, the value of x is b1c2 minus b2c1 upon a1b2 minus a2b1, and the value of y is c1a2 minus a1c2 upon a1b2 minus a2b1, and we'll substitute the values. So b1 into c2, that is minus 3 into minus 15 minus b2 into c1, so that is minus 3 into minus 7 upon a1 into b2, that is 1 into minus 3 minus a2 into b1, that is equal to 3 into minus 3. Similarly, y will be equal to c1 into a2, so minus 7 into 3 minus a1 into c2, so 1 into minus 15 upon a1 b2 minus a2 b1, so that is 1 into minus 3 minus 3 into minus 3. So x will be equal to minus 3 into minus 15 is 45 minus minus 7 into minus 3 is plus 21, and this minus sign, so this is 45 minus 21 upon minus 3 and plus 9, so minus 3 and plus 9 minus 3 plus 9, so minus 3 plus 9 is equal to 6. So this is 45 minus 21 upon 6, which can be written as 24 upon 6, which is equal to 4, and the value of y will be equal to minus 7 into 3, that is minus 21 plus 15 upon 6, so this will be equal to minus 6 upon 6, which is equal to minus 1. So we got the value of x as 4 and y as minus 1. So this is how we solve the pair of equation by method of cross multiplication. Let's take a look at this example. For what value of k, kx plus 3y minus k minus 3 and 12x plus ky minus k equal to 0 have infinitely many solutions. So the equations have infinitely many solutions, and we already know for infinite solutions the condition which we did in the
first session, for infinite solution, the condition required is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. So we have to find the values of a1, a2, b1, b2 and c1, c2. So first we have to shift everything on the left hand side, and then we'll write the value of a1. So a1, that is in first equation, a1 is k, a2 is value of x, coefficient of x in the second equation. So first equation we have to compare with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So a1 is k, the value of a2 is 12. Similarly, b1 is 3 and b2 is k, and c1 is minus bracket k minus 3 and c2 is minus k. So we'll substitute these values in this condition. So this will be k upon 12 is equal to 3 upon k is equal to minus of k minus 3 upon minus k. So this will be, on equating the first two, we'll get k square is equal to 36, and on equating the second yani ki next two, this will be 3k is equal to k into k minus 3. So if k square is 36, so k will be plus or minus 6, and if on solving this will be 3k equal to k square minus 3k, and therefore k square is equal to 3k plus 3k, so that is equal to 6k. So k square will be equal to 6k, and we have to find the value of k. So this will be k square minus 6k is equal to 0. Taking k common, this will be k minus 6 is equal to 0. So therefore k is equal to 0 or k equal to 6. So we got two values of k from the second part and two values of k from the first part. So अब ऐसे सिचुएशन में हमें जो फाइनल आंसर लिखना है वो ऐसा आंसर होता है विच इज़ कॉमन इन बोथ ऑफ दीज. सो द कॉमन आंसर हियर इज k इक्वल टू प्लस 6, क्योंकि k स्क्वायर 36 है तो k प्लस या माइनस 6 कुछ भी हो सकता है, और k स्क्वायर माइनस 6 के इक्वल टू 0 से हमने k 0 और k इक्वल टू 6 दो वैल्यूज़ निकाली. अब दोनों में हमें कॉमन चीज़ ढूंढनी है. दोनों में कॉमन चीज़ है प्लस 6 दोनों में आ रहा है, तो जो फाइनल आंसर होगा वो होगा k इक्वल टू 6. तो लास्ट में हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, दैट इज फॉर k इक्वल टू 6 द इक्वेशंस हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस. So this is how we have to find the value of k. Let us take a look at some more examples. Suppose this is NCERT question number 2, exercise 3.5. First question, for what values of a and b does the pair of equations have infinite solutions? So again the equations are 2x plus 3y minus 7 equal to 0. We wrote this equation in general form, and the second equation is a minus b x plus a plus b y minus bracket 3a plus b minus 2 is equal to 0. And then what we'll do, we'll write the values of a1, b1, a2, b2 and c1, c2. So a1 is equal to 2. We have to compare this with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and this with a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So a1 will be equal to 2 and a2 is equal to a minus b. Similarly, b1 is equal to 3 and b2 is equal to a plus b. c1 is equal to minus 7 and c2 is equal to minus bracket 3a plus b minus 2. So this will be, we are given for what value of a and b the equation have infinite solutions. So for infinite solutions we know a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. So we'll put the values of a1 b1, a2 b2 and c1 c2. So a1 b1
a1 is equal to 2 upon a2. a2 is equal to a minus b is equal to b1. b1 is 3 upon b2 is a plus b is equal to c1. c1 is minus 7 and c2 is minus 3a plus b minus 2. So the first thing that we'll do is we'll equate the first two equations, यानी कि first equality. So this will be 2 into a plus b is equal to 3 into a minus b. तो अब ये हो जाएगा 2a plus 2b is equal to 3a minus 3b. यानी इसे हम लिख सकते हैं 3a minus 2a equal to 5b और a equal to 5b. ये हो गया एक रिलेशन. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a minus 5b is equal to 0. अब सेकंड रिलेशन हमें मिलेगा जब हम बाकी दोनों पार्ट्स को इक्वेट करेंगे. यानी अब ये हो जाएगा 3 इंटू, ये माइनस वाला पार्ट जाएगा ऊपर, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ऑफ 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 7 इंटू ए प्लस बी. तो अब ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 7a माइनस 7b. तो अब ये हो जाएगा माइनस 9a माइनस 3b प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 7a प्लस 7b. तो अब इसे हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज माइनस 2a माइनस 10b प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब इसे हम कर देते हैं इक्वेशन 2. अब a की वैल्यू जो 5b हमने फर्स्ट इक्वेशन में बनाई है उसे हम पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में. तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू, विल पुट a एज 5b. तो माइनस 2 इंटू 5b माइनस 10b प्लस 6 इज इक्वल टू 0. सो दिस विल बी माइनस 10b प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो माइनस 20b प्लस 6 इज इक्वल टू 0. सो 20b is equal to 6 and b will be equal to 6 upon 20 यानी कि 3 upon 10. सो b की वैल्यू हमें मिल गई 3 upon 10. तो अब a जो है, a है 5b यानी कि 5 इंटू 3 upon 10. तो देयरफॉर a हो जाएगा 3 upon 2. तो इस तरह हमें a और b की वैल्यूज़ मिल गई. अब यहाँ पर भी हमने a और b एक बार फर्स्ट पार्ट इक्वेट किया और एक बार सेकंड पार्ट इक्वेट किया. इस तरह हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए हमेशा दो पार्ट्स हमेशा मिलते हैं. अब इसी तरह लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल. अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है, अब यहाँ हमें फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इक्वल टू 2k प्लस 1 हैव नो सॉल्यूशन. यानी k की क्या वैल्यू होंगी कि ये दोनों इक्वेशंस जो है इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. अब नो सॉल्यूशन कंडीशन से पहले हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे जनरल फॉर्म में. तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y माइनस 2k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0 एंड a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इक्वल टू माइनस 1, a2 इक्वल टू 2k माइनस 1, b2 इज इक्वल टू k माइनस 1, c2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2k प्लस 1. इस तरह में a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज़ मिल जाएंगी. अब हमें ये वैल्यूज़ कहाँ से मिली? तो हमने कंपेयर किया फर्स्ट इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, और सेकेंड इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से. अब हमें पता है नो सॉल्यूशन कंडीशन. तो फॉर नो सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की तब होती हैं जब दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं. यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. ये पार्ट हमने फर्स्ट सेशन में किया है. यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. तो अब we'll substitute the values of a1 a2 b1 b2 and c1 c2. So this will be 3 upon 2k minus 1 is equal to 1 upon k minus 1 is equal to minus 1 upon minus of 2k plus 1. So this will be
3 into k minus 1, so that is 3k. We are equating the first two, that is these two. So this is 3k minus 3 is equal to 2k minus 1. So this is k equal to 3 minus 1, that is 2. So k equal to 2. And on equating the second part, this will be minus 2k, यानी कि we are equating these two. So this will be minus 2k minus 1 is equal to, we are multiplying this minus 1 by k minus 1. So this will be minus k plus 1. So this is minus 2k plus k, that is minus k equal to 2. So therefore, sorry, this is not equal to. So this will be k is not equal to minus 2. So एक वैल्यू हमारे पास आई है k इक्वल टू 2 और दूसरी वैल्यू आई है k नॉट इक्वल टू -2. तो यानी कि k की वैल्यू 2 होनी चाहिए और k की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए. तो जो लास्ट लाइन हम लिखेंगे सॉल्यूशन के लिए वो होगा फॉर k इक्वल टू 2 द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन. दिस इज व्हाट वी हैव टू राइट. अब ध्यान से देखना आप कि नो सॉल्यूशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि एक जगह इक्वल टू आता है, एक जगह नॉट इक्वल टू आता है. तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा. तो हमारा जो आंसर है वो हमें इस तरह लिखना है. अब सपोज कि अगर k आया होता +-2 और k नॉट इक्वल टू -2, तो हम लिखते कि k -2 नहीं हो सकता और फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से +-2. तो अगर -2 नहीं हो सकता तो +2 इज़ द आंसर. इस तरह हम सोचते. लेकिन अब फिलहाल यहाँ फर्स्ट कंडीशन में k इक्वल टू 2 आ गया है तो हम लिखेंगे कि k इक्वल टू 2. और अब यहाँ अगर ऐसा होता कि k इक्वल टू 2 एंड k नॉट इक्वल टू 2, अगर दोनों कंडीशन आ जाती कि k इक्वल टू 2 एंड k नॉट इक्वल टू 2, तो हम लिखते हैं कि नो रियल वैल्यू ऑफ k इज़ पॉसिबल. सो मेक श्योर कि आप ये कंडीशंस ध्यान से देख लें. अगर आपको कंडीशंस याद नहीं है तो यू कैन check the session 1. In session 1 we discussed about the conditions of the pair of linear equations. Moving on further, let's take a look at some of the word problems. अब word problems में हमें equations बनानी है और equations को solve करना है by the method of cross multiplication. वैसे हम equations बनाने के बाद किसी भी method से solve कर सकते हैं, लेकिन as we did method of cross multiplication recently, so we'll solve this by method of cross multiplication. Now here it is given a part of monthly hostel charges is fixed, यानी एक पार्ट जो है वो फिक्स है एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस. यानी कि जो हॉस्टल चार्जेस हैं उसका एक पार्ट फिक्स है और दूसरा पार्ट जो है वो डिपेंड करता है कितने दिन मेस से फूड लिया है. व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज़ टू पे 1000 रुपीज़ एज हॉस्टल चार्ज. यानी एक स्टूडेंट ए है, उसने 20 days फूड लिया है, 20 days फूड लिया है and she has to pay 1000 rupees. Similarly, a student B who takes the food for 26 days food and she has to pay 1180 rupees as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. अब दो तरह के चार्जेस, तो एक चार्जेस है फिक्स चार्ज. तो फिक्स चार्ज को हम मान लेते हैं लेट द फिक्स चार्ज बी x रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी इक्वल टू वाई. यह हमें क्वेश्चन से ही पता चल गया. अब 20 days फूड लिया है और 1000 रुपीज़ पे किए हैं, तो 20 days फूड के लिए x इज़ द फिक्स चार्ज प्लस द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज़ y. सो फॉर 20 days इट विल बी 20y. सो x प्लस 20y ये हो गया टोटल चार्ज. ये हमें बता दिया है 1000. तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन. अब अगर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है तो हम लिखेंगे x प्लस 20y माइनस 1000 इज इक्वल टू 0. बिकॉज रिमेंबर कि फर्स्ट स्टेप होता है सब कुछ लेफ्ट साइड हमें शिफ्ट करना है. एंड फॉर 26 days फूड द चार्जेस आर 1180. सो फर्स्ट इज फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज इज x प्लस 26 days फूड और एक दिन का चार्ज है y, तो 26 days का होगा 26y इज इक्वल टू 1180. सो दिस विल बी x प्लस 26y माइनस 1180 इज इक्वल टू 0.
इफ़ वी हैव टू सॉल्व दिस बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन तब हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एज वी आर सॉल्विंग बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल हैव टू शिफ्ट एवरीथिंग टू द लेफ्ट साइड। अब हमारे पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बन गई है, तो हम a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 20, c1 इज इक्वल टू -1000। Similarly, a2 is equal to 1, b2 is equal to 26 and c2 is equal to -1180. अब x, so we know that x is equal to b1 c2 minus b2 c1 upon a1 b2 minus a2 b1, and y is equal to c1 a2 minus a1 c2 upon a1 b2 minus a2 b1. We just have to put the values of a1 b1 c1 a2 b2 c2 and get the values of x and y, that is fixed charge and cost of food per day. Let's take a look at next example. A fraction becomes 1/3, यानी फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाती है 1/3 when 1 is subtracted from the numerator. अब ये फ्रैक्शन क्वेश्चन है, फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में आप लोगों को पता है कि हम सपोज करते हैं लेट द न्यूमरेटर बी इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर बी इक्वल टू y, क्योंकि हमने प्रीवियस सेशंस में फ्रैक्शन क्वेश्चंस किए हैं, तो न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y, तो देयरफॉर द फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू x अपॉन y। तो अब हमें बोला है फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाती है 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1/3 कब हो जाती है, जब 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर x है, तो x माइनस 1 अपॉन y अगर हम करते हैं तो उसकी वैल्यू 1/3 है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखेंगे। सो दिस विल बी 3x माइनस 3, वी आर मल्टीप्लाइंग दिस 3 इज इक्वल टू y. So 3x minus y minus 3 is equal to 0. This is equation 1 and it becomes 1/4, यानी फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाती है 1/4 when 8 is added to the denominator, यानी डिनोमिनेटर में ऐड किया, अब न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया है, तो न्यूमरेटर विल रिमेन एज इट इज एंड वी आर एडिंग 8 to the denominator. So this will be 4x equal to y plus 8. Because we have to solve this by method of cross multiplication, तो 4x minus y minus 8 is equal to 0. This is in general form. So a1 is equal to 3, b1 is equal to -1, c1 is equal to -3. Similarly, a2 is equal to 4, b2 is equal to -1, sorry, and c2 is equal to -8. Then we'll put the values in the formula. So this is how we'll do the fraction questions. Moving on to the next example. Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. यानी यश को 40 मार्क्स आए हैं टेस्ट में और 3 मार्क्स जो हैं वो उसे मिले हैं फॉर ईच ऑफ द राइट आंसर, यानी हर राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स और हर रॉन्ग आंसर के लिए उसका 1 मार्क डिडक्ट हुआ है। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी अगर हर राइट आंसर यानी करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलते एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, यानी कि इनकरेक्ट के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट होते, तो यश वुड हैव स्कोर्ड 50, तब यश के 50 मार्क्स होते। अब यहाँ दो सिचुएशन जो हैं वो हैं कि एक बार यश के 40 मार्क्स हैं और एक बार 50 मार्क्स हैं। अब 40 मार्क्स के लिए उसे 3 मार्क्स मिले हैं फॉर राइट आंसर और 1 मार्क उसने लूज़ किए हैं फॉर ईच रॉन्ग आंसर। 50 मार्क्स के लिए उसे हर करेक्ट आंसर के लिए मिले हैं 4 मार्क्स एंड हर इनकरेक्ट आंसर के लिए डिडक्ट हुए हैं 2 मार्क्स and then his score was 50. How many questions were there in the test? अब क्वेश्चंस कितने थे टेस्ट में ये आपसे पूछा गया है। तो अब दो तरह के क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चंस थे जो उसने यानी कि यश ने करेक्टली आंसर किए और दूसरे क्वेश्चंस थे विच वर आंसर्ड इनकरेक्टली। तो लेट क्वेश्चंस number of questions, let the number of questions answered correctly is equal to x and number of questions incorrectly answered
इज इक्वल टू वाई, यानी कि उसने एक्स क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है और वाई क्वेश्चंस का गलत आंसर दिया है। अब फर्स्ट सिचुएशन है कि उसे 40 मार्क्स मिले हैं, तो 40 मार्क्स मिले हैं उसे और एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिले हैं। अब अगर एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मिले हैं तो उसने टोटल करेक्टली आंसर किए हैं एक्स क्वेश्चंस, एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली। तो एक के लिए 3 मार्क्स मिले हैं तो एक्स के लिए उसे मिले होंगे 3x, तो 3x मार्क्स उसने गेन कर लिए। अब उसने कुछ लूज़ भी किए हैं, 1 मार्क उसने लूज़ किया है फॉर ईच ऑफ द रॉन्ग आंसर। तो रॉन्ग आंसर, एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क लूज़ किया है, तो y रॉन्ग आंसर्स के लिए उसने y मार्क्स लूज़ किए होंगे। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। ध्यान दीजिएगा कि अब हमने सब्ट्रैक्ट y इसलिए किया क्योंकि वो लूज़ कर रहा है मार्क्स, तो लूज़ कर रहा है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो दिस विल बी 3x माइनस वाई माइनस 40 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1। अब सेकेंड सिचुएशन है कि ही स्कोर्ड 50 मार्क्स, ही स्कोर्ड 50 मार्क्स एंड ही वॉज अवॉर्डेड 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। अब एक करेक्ट आंसर के लिए ही वॉज गेटिंग 4 मार्क्स, सो एक्स नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स के लिए उसे मिलेंगे 4x, और एक इनकरेक्ट आंसर के लिए डिडक्ट हुए 2 मार्क्स, तो y आंसर्स के लिए होंगे माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 50। सेम लॉजिक है कि मार्क्स डिडक्ट हुए इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो दिस विल बी 4x माइनस 2y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो a1 is 3, b1 is minus 1, c1 is minus 40 and a2 is 4, b2 is minus 2 and c2 is minus 50. Then we have to put these values in x. So x is equal to b1 c2 minus b2 c1 upon a1 b2 minus a2 b1, and y is equal to c1 a2 minus a1 c2 upon a1 b2 minus a2 b1, and then we'll get the values of x and y. Now let's take a look at next example. The next example is places A and B are 100 kilometers apart on a highway. अब one car starts from A. अब suppose these are places A and B. अब यहाँ दो सिचुएशंस हैं। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, यानी एक कार जो है वो ए से स्टार्ट करेगी और सेकंड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, दूसरी कार बी से स्टार्ट करेंगी। इफ़ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन विथ डिफरेंट स्पीड, यानी अब अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, जैसे सपोज ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। अब अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, यानी कि सपोज दे आर मूविंग टू देयर लेफ्ट साइड, टू द राइट साइड। सो अगर one car starts from A and another from B at the same time, if the cars travel in the same direction with different speed, they meet in 5 hours, यानी दोनों मीट करेंगी 5 hours में। अब दोनों क्योंकि राइट साइड जा रही हैं, तो सपोज वो दोनों मीट करती है यहाँ पे पॉइंट सी पर, और सी पर मीट करने के लिए टाइम लगा 5 hours। इसी तरह इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, अब टूवर्ड्स ईच अदर यानी ए विल मूव टू द राइट एंड बी विल बी मूविंग टू द लेफ्ट। सो दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करते हैं टूवर्ड्स ईच अदर, दे मीट इन 1 hour। तो 1 hour में मीट कर रहे हैं। अब सपोज ये पॉइंट है डी और डी पॉइंट पे मीट करते हैं इन 1 hour। अब हमें पूछा है व्हाट आर द स्पीड्स, अब स्पीड कितनी होगी ये हमें पूछा है। अब ए और बी के बीच का डिस्टेंस हमें बता दिया है, इट इज़ 100 किलोमीटर्स। सो अब एक लॉजिक जो दोनों सिचुएशन में अप्लाई होता है। फर्स्ट सिचुएशन में हम ये बोल सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी ये दोनों ऐड करके 100 होगा, सॉरी ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 100, ये हम बोल सकते हैं क्योंकि ए सी बड़ा है, तो ए सी में से अगर हम बी सी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब जो बचेगा वो 100 होगा। उसी तरह सेकेंड सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि ए डी प्लस बी डी इज इक्वल टू 100, ए डी और बी डी को ऐड करके 100 मिलेगा। अब ए सी जो है ये है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ए जो है वो ए से सी तक पहुंचा फर्स्ट सिचुएशन में, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है वो है ए सी। तो अब हमें स्पीड नहीं पता और स्पीड के बारे में हमसे पूछा गया है, तो अब हम सपोज करते हैं कि लेट द
speed of A is equal to x kilometers per hour and the speed of B is equal to y kilometers per hour. अब हम A की स्पीड x और B की स्पीड y हम अज्यूम कर रहे हैं. तो अब AC जो है, AC है डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय द टाइम. तो स्पीड और टाइम को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिस्टेंस मिलता है. तो A की स्पीड जो है वो हमें पता है, हमने अज्यूम की है x, और टाइम जो A को लगा A से C तक पहुंचने में वो टाइम है 5 आवर्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है कि इफ़ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स. तब द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय A इज AC विच इज इक्वल टू 5x बिकॉज 5 इज द टाइम एंड x इज द डिस्टेंस. तो 5x माइनस BC इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय B. तो अब B को B से C पर जाने के लिए लगा टाइम 5 आवर्स और B की स्पीड हमने अज्यूम की है y, तो दिस विल बी y 5y. तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100. तो AC माइनस BC इज इक्वल टू 100 एंड AC इज द डिस्टेंस कवर्ड और डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. स्पीड के बारे में हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हमने एक की स्पीड को x और दूसरे की स्पीड को y अज्यूम कर लिया. उसके बाद हमने दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दिया. तो AC 5x माइनस 5y इज 100, देयरफॉर x माइनस y विल बी इक्वल टू 20. हमने 5 से डिवाइड कर दिया. इन सेकेंड सिचुएशन दे मीट इन 1 आवर. अब 1 आवर में मीट कर रहे हैं, तो AD जो है, AD इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय A. अब A से डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो डिस्टेंस इज अगेन स्पीड इनटू टाइम. स्पीड हम अज्यूम कर रहे हैं x और टाइम जो लिया गया है वो है 1 आवर, क्योंकि 1 आवर क्वेश्चन में बोल दिया गया है दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, दे मीट इन 1 आवर्स. तो देयरफॉर दिस विल बी x प्लस BD इज y, क्योंकि B को भी 1 आवर लगा D तक पहुंचने में. तो x प्लस y इज इक्वल टू 100. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. एंड नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय एनी ऑफ वन मेथड. In current scenario, method of elimination would be simple, but you can also do it by method of cross multiplication. So on solving these two, you'll get the values of x and y. This will be the speed of A and speed of car B. Now moving on to the next example, which is the area of a rectangle gets reduced by 9. एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. सो सपोज दिस इज रेक्टेंगल. अब इसका एरिया रिड्यूस हो जाता है 9 से इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3. अब ये हो गया एक सिचुएशन. सेकेंड सिचुएशन है इफ यू इंक्रीज द लेंथ बाय 3 एंड ब्रेड्थ बाय 2 एरिया इंक्रीजेस. तो दो सिचुएशन है. फर्स्ट सिचुएशन में एरिया रिड्यूस हो रहा है, सेकेंड में एरिया इंक्रीज हो रहा है. फाइंड द डायमेंशंस. तो दो सिचुएशन से हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी और दो जो चीज़ें हमें पूछी है वो है डायमेंशंस. तो लेट द डायमेंशंस मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ. तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी y. अब लेंथ x और ब्रेड्थ y, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो विच विल बी इक्वल टू x इंटू y. अब x इंटू y हो गया एरिया. अब हमें बोला गया है कि एरिया रिड्यूस्ड बाय 9, यानी जो xy है ये xy माइनस 9 हो जाएगा, तब ये हो गया रिड्यूस बाय 9. अब ये है एरिया. अब एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो इफ़ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, तो लेंथ x है यानी कि x माइनस 5 हो जाएगा. लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3. तो ब्रेड्थ यानी कि y प्लस 3. तो ये हो गया एरिया इज रिड्यूस बाय 9 यानी कि xy माइनस 9 इज लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, तो x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 3 दैट इज ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3. तो ये हो गया y प्लस 3. अब यहाँ हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा xy माइनस 9 इज इक्वल टू xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15. सो दिस विल बी 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 विच इज इक्वल टू माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ये हो गया इक्वेशन 1. अब सेकेंड सिचुएशन हमें बता दिया है कि द एरिया इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3. अब अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं 3 से, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3,
तो लेंथ को अगर हम 3 से इंक्रीज करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 3, ये हो गया लेंथ इंक्रीज बाय 3, एंड डिक्रीज एंड द ब्रेथ बाय 2, तो वी आर इंक्रीजिंग द ब्रेथ बाय 2, तो x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 2, द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67, तो एरिया था xy, अब एरिया बढ़ गया 67 से, तो xy प्लस 67, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। तो अब फिर से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो दिस विल बी xy प्लस 67 इक्वल टू xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, सो दिस विल बी 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 2। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके लेंथ और ब्रेथ निकालना है। हमने इक्वेशंस कैसे बनाई, तो एरिया इज रिड्यूस बाय 9, यानी कि, और हमें डायमेंशंस निकालने थे, यानी कि हमने लेंथ को x और ब्रेथ को y अज्यूम कर लिया। एरिया हो गया L इंटू बी होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज x इंटू वाई, तो एरिया इज रिड्यूस बाय 9, देयरफॉर xy माइनस 9, इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, तो x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, दैट इज y प्लस 3। अब ये इसलिए क्योंकि लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई करके ही एरिया मिलता है। इसी तरह सेकेंड सिचुएशन में एरिया बढ़ रहा था, तो xy प्लस 67, इफ यू इंक्रीज द लेंथ बाय 3 एंड इंक्रीज द ब्रेथ बाय 2, तो x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 3। ऑन सॉल्विंग वी गॉट दीज टू इक्वेशंस। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करके वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, दैट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द rectangle. So that's it for today's session. In the next session we'll continue with the reducible form of linear equations. Till then you can finish off with these exercise. This was exercise 3.5 from the NCERT. So you can finish off. In the next session we'll start with the equations in the reducible form. Thank you.